today we are going to start with topic that is animal tissue. Close your textbook. Textbooks are not required. Okay. We will discuss the things later on. If you want, you can read the textbook. Okay. So in case of the animal tissue, पहले हम लोग introduction देखेंगे, right? Now, if you take any organism, okay, there are different level of organization. Okay. यहाँ पे दिख रहा है there are atoms. बहुत सारे atoms एक साथ आएंगे and it is going to form a chemical. Now, what is the chemical over here? For example, it is the DNA. So that is the first level called as chemical level. Okay. Now, many chemicals they are arranged in a cell that is called as cellular level. What is a cell? Cell is called as structural and functional unit of life. All the organisms are made up of cell, right? जब भी सब सेल एक साथ आएंगे and they are going to perform common function. उनका फंक्शन भी कॉमन होना चाहिए. Origin should also common. तो उसको बोलना है टिश्यू. Okay, what is tissue? Tissue is a group of cell having common origin and perform same function. Okay, it is called as the tissue. Right? Yes or no? Now, you can see there is a cellular level. After the cellular level, you can see many cells will come together to form tissue. Many tissue will come together to form organ. So, what is the organ over here? Organ is stomach, for example. Stomach is made up of different tissue. It is made up of circular tissue. It is made up of epithelial tissue. So it is aggregation of many tissue. तो बहुत सारे टिश्यू एक साथ आएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? ऑर्गन. बहुत सारे के ऑर्गन एक साथ आएंगे और इट इज गोइंग टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. तो दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टम लेवल. एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा? ऑर्गेनिज्म. देयर इज अ क्यूट बेबी. इट इज ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम, राइट? So these are called as what? Level of organization. Okay, they are called as level of organization. So level of organization में first is called as cell, second is called as tissue. Many tissue is going to come together to form organ. Organ is going to form organ system, organism. Then there are two type of cell in your body. One is called as somatic cell, another is called as germ cell. Somatic cell मतलब आपके बॉडी के जितने भी सेल्स है वो क्या फॉर्म करेंगे? It is formed by the somatic cell. Somatic cell are the body cell. Okay. Another is called as germ cell. Germ cells are going to form gamete. मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं. तो ये कौन फॉर्म करेगा? जर्म सेल. हाँ, याद रखो. ऑलवेज रिमेंबर दीज सेल. ओके, दे विल अंडरगो अ सेल डिवीजन. ओके, दे विल अंडरगो सेल डिवीजन. एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट? हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में we will talk about tissues. These are the different type of tissues that we are going to study. Okay, if you observe that, can you see this is called as somatic cell? This somatic cell, it will always undergo mitosis. Okay, now what is mitosis? देखो क्या होता है. Suppose एक ये सेल है 2n, ये डिवाइड हो जाएगा into 2 सेल, दोनों भी 2n 2n. मतलब क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा कि नहीं? मतलब अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 46 क्रोमोसोम ही रहेगा. इजी है कि नहीं? यस. ओके. नाउ अनदर सेल कॉल्ड एज जर्म सेल. जर्म सेल इट विल अंडरगो मियोसिस. तो सपोज इफ दिस इज अ वन सेल विच इज 46 मतलब क्या है? 2n. ओके, नाउ इट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 सेल. Okay, are you getting this? And all the cell will be haploid. Haploid, you understand? Okay, that means what? 223. Only one set of chromosome. This is 23. This is 23. Are you getting this? So this is how many cells are formed? 4 cells. And ये germ cell किधर है? Germ cells are present in gonads. आपकी बॉडी में गोनाड क्या है? मेल है तो मेल क्या है? टेस्टिस. फीमेल है तो फीमेल इज ओवरी. testes and ovaries में there is a formation of gamete and that is takes place by the germ cell. Okay, now you will come across one more terminology. ये terminology को बोलते हैं हम लोग, दिख रहा है यहाँ पे? हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में it is basically arrangement of the tissue or it is arrangement of the cell or the tissue in the organ. It is called as histology. For example, अगर मुझे स्टमक स्टडी करना है तो स्टमक में कैसे कैसे टिश्यू कैसे अरेंज है तो उसको क्या बोलना है? हिस्टोलॉजी. ओके, हिस्टोलॉजी इट इज
द स्टडी ऑफ सेल्स और टिश्यू अरेंजमेंट इनसाइड द बॉडी। ओके, लास्ट क्या है, ये आपका बॉडी में देयर आर ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स, लेकिन ये ट्रिलियंस ऑफ सेल में देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ सेल। कौन कौन से टाइप है, पहले बोलो, एपिथेलियल, सेकेंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड फोर्थ इज नर्वस। तो ये 4 टाइप है। ओके, एपिथेलियम, connective, muscular and nervous. Now if you can remember, this is called as the first cell which is called as epithelial tissue. Epithelial is also going to form covering. कवरिंग समझते कि नहीं, मतलब अगर मेरे स्किन के ऊपर कवरिंग है तो वो क्या हुआ, एपिथेलियल टिश्यू। मेरे डाइजेस्टिव टिश्यू और डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर से कवरिंग है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू। आर यू गेटिंग? तो ये एपिथेलियल टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज कवरिंग टिश्यू। उसका दूसरा नाम है लाइनिंग टिश्यू। क्या नाम है? लाइनिंग, बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, आउटर लाइनिंग और इनर लाइनिंग। समझ में आया? ओके, उसके बाद में सेकेंड टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चलता है कि नहीं, कनेक्टिव टिश्यू मतलब इट इज गोइंग टू कनेक्ट, बराबर कि नहीं, इट इज गोइंग टू व्हाट, कनेक्ट। क्या कनेक्ट करेगा, दिस इज गोइंग टू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन, इट इज गोइंग टू कनेक्ट व्हाट, different organ. Which two different organ? For example, can you remember your bone are connected to bone? Am I correct? तो ये दो बोन को कनेक्ट करने वाले को बोलते हैं हम लोग लिगामेंट। यस और नो? कनेक्टिव टिश्यू, पता कि नहीं? समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, बट मसल is also connected to your bone, right? Yes or no? So they are connected with the help of what? Tendon. क्या बोलने का इसको, टेंडन। आर यू गेटिंग? तो ये सब क्या, कनेक्टिव टिश्यू। आपका बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज। यहाँ पे हाथ लगाओगे खुद के, देखो यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो कार्टिलेज, हो रहा है कि नहीं? तो ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, योर ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ रहा है? सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट द next called as, what is the next, called as muscular tissue. muscular मतलब मसल ना, मसल के वजह से आपको मसल डेवलप करते कि नहीं, बाइसेप, ट्राइसेप, बराबर कि नहीं, ऑल दीज आर मस्कुलर टिश्यू। एंड फाइनली नर्वस टिश्यू है आपका, ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन सुना है, न्यूरॉन नर्वस टिश्यू का पार्ट है। आर यू गेटिंग? न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स, दे आर व्हाट, और दे आर द पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टिश्यू हम प्राइमरीली क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन detail. Now we are going to start with the very first issue, that these are the different systems we have, right? Nervous system है, respiratory system है, circulatory system है, digestive system है, right? उसके बाद में excretory system है, you can see there is a muscular system. After muscular system you can see there is a skeleton system, because your body has got how many bones, 206 bones, बराबर कि नहीं? तो उसका स्टडी है, that also we are going to do in this year. Integumentary system, ये नया नाम सुना रहेगा, उसके अंदर आता है आपका हेयर, स्किन एंड नेल्स। ओके, उसके बाद में आएगा द नेक्स्ट सिस्टम विच इज कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम विल प्रोवाइड द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या, प्रोटेक्शन है ना। ओके, आफ्टर दैट यू विल हैव द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन इज गोइंग टू रिलीज द हार्मोन। आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन रिलीज करेगा, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के बाद में आपका फेवरेट सिस्टम आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सी एनी डाउट, एनी क्वेरी, अंडरस्टूड? ओके, उसके बाद में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पहला टिश्यू। क्या नाम है पहले टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अभी एपिथेलियल टिश्यू का ना सर्टेन प्रॉपर्टीज आर देयर, तो वो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, एंड दीज प्रॉपर्टीज वी विल ट्राई टू, ओके, दीज प्रॉपर्टीज वी विल ट्राई टू स्टडी। हाँ, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, देखो आपको दिख रहा है सेल्स बहुत एक दूसरे के नजदीक अरेंज है कि नहीं? सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज। कॉम्पैक्ट मतलब क्या, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो उसको क्या बोलने हैं, द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज, बराबर कि नहीं, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द सेल। तो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द सेल, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज है तो दोनों के बीच में स्पेस रहेगा क्या, नहीं। तो देर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस, देर इज नो इंटरसेल्युलर
सेल्यूलर स्पेस, ये पहला प्रॉपर्टी। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज बट विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अगर आपने देखा हर एक सेल्स में ये अलग अलग टाइप्स है, दिख रहा है, ये ऑल आर रेस्टिंग ऑन समथिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ना लेयर, दिस लेयर, कैन यू सी देयर इज अ लेयर, कैन यू सी देयर इज अ लेयर, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलने का उसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज प्रेजेंस ऑफ basement membrane. Okay, what is basement membrane? Basement membrane is a acellular double layered membrane on which epithelial cells are arranged. तो epithelial cells के पास खुद का क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बराबर कि नहीं? याद रखो, बाकी कोई भी टिश्यू में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको किस में दिखेगा? एपिथेलियल टिश्यू में दिखेगा। सो सेल्स आर अरेंज ऑन डबल लेयर्ड acellular membrane that is called as basement membrane. Easy? ओके, उसके बाद में जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दे आर एवैस्कुलर। ए मीन्स विदाउट, वैस्कुलर का मतलब क्या है? ब्लड वेसल, मतलब उनको खुद का ब्लड सप्लाई नहीं है, तो उनको न्यूट्रिएंट किधर से मिलेंगे? बाजू वाले सेल से या फिर बाजू वाले टिश्यू से। आर यू गेटिंग? दे डू नॉट हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई, सो इट इज कॉल्ड एज एवैस्कुलर, बट दे हैव देयर ओन नर्व सप्लाई, बराबर कि नहीं? दे हैव देयर ओन nerve supply, मतलब nerves are going to arrange them or their nerves are going to attaches with them. Okay, so they have their own nerve supply. समझ रहे हैं? They do not have their own blood supply. खुद का blood supply नहीं है, लेकिन nerve supply है। इतना समझ में आया? And the last property we can say, they have the capacity of repair and regeneration. मतलब अगर मुझे कोई भी स्किन पे इंजरी हुआ तो जिंदगी फिर वैसे ही रहेगा क्या? नहीं, वो हील होगा, मतलब उसके पास क्या है? रिपेयर का कैपेसिटी है कि नहीं? नए सेल जनरेट हो रहे हैं तो रीजनरेशन। आर यू गेटिंग? सो दीज आर सर्टेन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। इजी है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? बोलो बोलो। यस, नो डाउट। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज a layer on which epithelial tissue are present. अब बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा है? एसेलुलर है, डबल लेयर्ड है, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एसेलुलर मतलब विदाउट सेल। ओके, उसके बाद में क्या क्या प्रॉपर्टीज है? दे आर फॉर्म द जेल कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन, कॉम्पैक्टली अरेंज, नो इंटरसेलुलर स्पेस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे हैव द डिफरेंट शेप। बराबर शेप क्या है? शेप कैन बी आइदर क्यूब शेप, ठीक है, क्यूब लाइक, दे कैन बी पॉलीगोनल, क्यूब शेप, कॉलम लाइक, कॉल्यूमनर, और एक क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? दे कैन बी आइदर अरेंज इन अ सिंगल लेयर और दे कैन बी अरेंज इन मल्टी लेयर। सिंगल लेयर हो सकते हैं या फिर मल्टी लेयर हो सकते हैं, बराबर कि नहीं? उसके बाद में न्यूक्लियस का लोकेशन क्या है? आइदर न्यूक्लियस इन द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, यस और नो? उसके बाद में एवैस्कुलर, एवैस्कुलर मैंने बताया, व्हाट इज एवैस्कुलर? खुद का ब्लड सप्लाई नहीं है, इट इज विदाउट ब्लड सप्लाई, दे डू नॉट हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई, सो इट इज एवैस्कुलर। इजी है? जा रहा है दिमाग में या मैं दिमाग में जा रहा है? दोनों भी एक साथ गएंगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये क्या है? कैपेसिटी ऑफ द रिपेयर एंड रीजनरेशन। अभी हम लोग देखेंगे उसका टाइप्स क्या है। टाइप्स में बेसिकली दो क्राइटेरिया है, एक तो वो सिंगल लेयर हो सकते हैं, समझ आए? हाउ मेनी लेयर? सिंगल, आपके जैसे, हाँ, या फिर उनके पास क्या है? मेनी लेयर हो सकता है। मेनी लेयर समझता है? मल्टी लेयर है ना, गल रेडी टू मिंगल। हाँ, सो दे आर व्हाट? आइदर दे कैन बी सिंगल लेयर और दे कैन बी मल्टी लेयर। दिख रहा है? एपिथेलियल में क्या है? फर्स्ट सिंपल, सिंपल मतलब दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। ओके, दे आर व्हाट? मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। सो आइदर दे कैन बी सिंगल लेयर, ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड एज यूनिस्ट्रैटोज। यूनिस्ट्रैटोज, यूनि मतलब एक ना, स्ट्रैटा मतलब लेयर, तारीख, राइट? यूनि मतलब क्या? सिंगल, एंड स्ट्रैटा मतलब लेयर। ओके, तो एक ही लेयर है ना। उसके देखो बहुत सारे टाइप है, क्या क्या है? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस मतलब पॉलीगोनल शेप है। ओके, उसके बाद में क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप है। देन आपको क्या है? नेक्स्ट क्या लिखा है? कॉलमनर मतलब कॉलम लाइक, सिलिएटेड मतलब उसके ऊपर सिलिया है, बराबर कि नहीं? देखो ये शेप के हिसाब या फंक्शन के हिसाब से,
तो स्क्वैमस में दिस सेल कैन बी अ पॉलीगोनल, आर यू गेटिंग? सेल्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बी अरेंज इन पॉलीगोनल वेज, आर यू गेटिंग दिस? ओके, और यहाँ पे क्या है? द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट सेंट्रली। क्यूबॉइडल नाम से बदलता है कि नहीं? दे आर क्यूब शेप, आर यू गेटिंग दिस? ओके, कॉलमनार में दे आर कॉलम लाइक, यस और नो? ओके, so they are column like, the nucleus can be present toward the base, ciliated, नाम से पता चलता है कि नहीं? ciliated मतलब उनके पास cilia है. What is cilia? Cilia are the fine hair like structure. Suppose if this is a cell, okay, now ये nucleus है, and can you see there is a fine hair like structure? They are called as ciliated. Okay, now there is one more. Sometimes this columnar cell are like this. तो यहाँ पे finger like projection दिख रहे हैं, तो बोलते हैं माइक्रोविलाई. क्या बोलने का? So they can be a type of columnar cell. Are you getting? These are the type of ciliated cell. Glandular मतलब it is going to secretory cell. It is going to secretory मतलब कुछ तो secrete करेगा. आपका sweat gland, glandular cell. Mammary gland will secrete the milk. Okay. उसके बाद में saliva is secreted by the salivary gland. Liver is going to secreted by, or the liver is going to secrete bile. Pancreatic juice, पैनक्रियाज, तो ये सब सीक्रेट हो रहा है कि नहीं? तो उसको क्या बोलने का? सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर. उसका टाइप्स है वो हम लोग देखेंगे. उसके बाद में सेंसरी, कैन यू एबल टू स्मेल? हाँ, आज किसके घर पे कुछ तो अच्छा बन रहा है, आपको स्मेल आएगा, समझता है कि नहीं? कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई स्मेल? अगर मैं कोई बेकरी शॉप्स के बाजू से जा रहा है, हाँ, रवा केक का स्मेल आया मतलब यहाँ पे अयंगार बेकरी है, हो रहा है कि नहीं? सो दैट इज अ सेंसरी. कैन यू एबल टू हियर right now? Can you able to hear me? Because of the sense, right? Can you able to see me? All because of sensory epithelium. समझ में आ रहा है कि नहीं? And then germinal. Germinal is very important. They are involved in gamete formation. Sperm, ovum, produced by germinal epithelium. Easy? Okay. So they are involved in gamete formation. Always remember. Okay. Stratified मतलब क्या है? Again they are going to form layer. They are arranged in a compound. And transitional epithelium में they can change their shape. Stratified and transitional are the example of compound. Compound मतलब क्या है? How many layer? That is what they are, many layered. Are you getting? And they are also called as what? Stratified. बराबर कि नहीं? Multistratos. Multistratos. Easy? क्या रहा है? Classification is clear to you? Okay, yes or no? Okay. Any doubt? Any query so far? Okay, this classification we have done. Now we are going to discuss each in detail. So we will discuss about the next part, which is called as squamous epithelium. Squamous में can you see the cells are arranged in a such a way that these cells look like a pavement. Pavement म्हणजे footpath. Okay, now you can see while you are walking on the footpath, there are paver blocks. They are fitted with each other. So when you are going to view from the top, अगर ऊपर से देखा तो कैसे दिखेगा? पेवमेंट जैसे दिखेगा, फुटपाथ जैसे दिखेगा. उसके वजह से उसको क्या बोलना है? पेवमेंट एपिथेलियम. न्यूक्लियस इज इलिप्टिकल और स्पेरिकल. इट इज सेंट्रली लोकेटेड. नाउ वेयर आर दीज प्रेजेंट सेल्स? स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन योर ब्लड वेसल. दिख रहा है ये ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल है कि नहीं? ब्लड वेसल का सबसे अंदर वाला लेयर दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? ओके, दिस लेयर इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. वी हैव द लंग्स. Okay, lungs में can you see? Remember they have alveoli. Alveoli is also lined by single or simple layer of squamous epithelium. We have coelom. Coelom ऐकलंय? Coelom is nothing but what? Body cavity. So in the body cavity, it is a cavity present between the outer body wall and visceral organ. It is also lined by the epithelium, which is called as squamous epithelium. Okay, so you can see this is squamous epithelium में the cells can be thin, flat, okay, polygonal. Now the next that they are fit together like tiles of the footpath.
therefore it is called as pavement epithelium. Pavement का meaning itself is a footpath, right? उसके बाद में the nucleus can be spherical or oval but in the center. Okay, then we will talk about what function: protection, absorption, transport. Blood vessels are going to help in transport. Okay, filtration and secretion. And then location, where it is located: blood vessels, alveoli and coelom. Coelom is a body cavity. पहला clear है. This is called as what? Squamous epithelium. Second is called as cuboidal epithelium. Name itself suggests that it is a cube shape. Cube shape, nucleus is centrally placed. Since it is a epithelium, it is resting on which membrane? Basement membrane. Okay. Now, where are the cuboidal epithelium present? Cuboidal epithelium present in case of kidney. Okay, you have studied the kidney somewhere in lower standard. Each kidney is made up of a nephron. Have you heard about nephron? They are also called as uriniferous tubule. So nephron का structure or diagram is like this. This is called as Bowman's capsule. This is called as proximal convoluted tubule. This is Henle's loop, distal convoluted tubule, and this is called as collecting duct. Okay, so you can see here the blood vessels are present. Okay, it is together called as this is a Bowman capsule. This is a glomerulus. Can you see this region? This region is called as PCT. This region is called as DCT. Proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule. This part is called as the Henle's loop. Okay, this is called as collecting duct. Okay, now can you see there is a PCT and DCT? So internally they are duct. Duct matlab it will be like this. Suppose if this is one part, this is another part. Are you getting? So internally they are going to show the cuboidal epithelium. Are you getting this? Can you see this is a cuboidal epithelium? Okay, so the cells will be arranged like this. Are you getting this? So this is a duct. Again here internally they are made up of epithelium. That epithelium is called as what? Cuboidal epithelium. Okay, look at these cells. Can you see these are the cells? देखो यहाँ पे this is a cell is made up of cuboidal epithelial cell. Can you see this? No? The cuboidal epithelium cell, where it is present in case of the kidney. Where it is present in case of the kidney. Easy. So PCT and DCT, proximal convoluted tubule, and DCT, distal convoluted tubule, it is lined by simple cuboidal epithelium. Then there is one more part that we have discussed. Can you see this is a pancreatic duct? Pancreas is a digestive gland located near the small intestine, duodenum. Pancreas दिख रहा है ये? It is a duct which is lined by the cuboidal epithelial cells. Easy है? Okay. See the description. They are cuboidal in shape. Okay. Then they are made up of, that is they have the nucleus which is spherical at the center. Then function is absorption, secretion. Main क्या है? That is location, where they are located. Lining of the pancreatic duct, salivary duct. PCT. What is PCT? Proximal convoluted tubule. What is DCT? Distal convoluted tubule. Easy है? Now coming to the next type, that is called as the columnar epithelium. Okay, what is the type? Columnar epithelium. In case of the columnar epithelium, you can see this is intestine. Your intestine has got folds internally. Can you see these are the fold? देख रहा है अंदर की तरफ fold है कि नहीं? These folds are called as villus. So internally, suppose if I take the section, so internally they have the fold like this. Are you getting? Okay, these are called as what? Single is called as villus. There are two. They are called as villi. क्या बोलना है? Villi. Suppose if this is one villus. This is one villus, and that villus contain a columnar cell like this. Can you see this? Okay, they contain the columnar cell like this.
Okay, they contain the columnar cell like this. Okay, and on that columnar cell, can you see there is a microvilli? Microvilli are the finger-like projection. Are you getting? So they are the finger-like projection which is present like this. Okay, they are having finger-like projection and they are going to form microvilli. Are you getting? They are going to form microvilli. Are you getting it? So this will be somewhat what? Small finger-like projection. That finger-like projections are called as microvilli. Are you getting it? Now you are. That means suppose if I draw a single cell, suppose if this is a cell, okay, this is a nucleus which is located toward the base, and this will have the structure like this. ओके इसको क्या बोलते हैं माइक्रोविलाय या फिर उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर ब्रश जैसे दिखते हैं ना ओके तो क्या बोलना है माइक्रोविलाय ब्रश बॉर्डर अभी इंटेस्टाइन में इसका काम क्या है बेसिकली इट इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन ओके ये सब नो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्शन होगा एंड देयर विल बी दिस एब्जॉर्ब देखो वी आर गोइंग टू कंज्यूम द फूड फूड खाया स्टमक के अंदर गया इंटेस्टाइन के अंदर गया इट विल अंडरगो डाइजेशन डाइजेशन के बाद ऑल द फूड गेट अल्टीमेटली एब्जॉर्ब एंड इट इज गोइंग टू एंटर इन योर ब्लड सर्कुलेशन दैट इज हाउ वी रिसीव द न्यूट्रिएंट एम आई करेक्ट okay so this is the structure that is called as the microvilli okay so they are tall pillar like there are two ends inner end these are the inner end okay and then there is outer end can you see these are the inner end these are the outer end so outer end is broader they are arranged like this so outer end is broader and inner end become narrow can you see the difference toward the base they are narrow toward the apex they are what the broad and broad is having finger like projection they are called as microvilli okay free end show the shula that is what it is going to show flat show microvilli nucleus can be oval present toward the base in the lower half function absorption and secretion easy any doubt any query now location where they are located intestine gallbladder gastric gland and intestinal gland so this is the third type am I correct third type first squamous second cuboidal third is called as columnar fourth is ciliated yes or no what is the fourth ciliated right now look at this can you see there is a ciliated epithelium okay yes okay now we will talk about the cell so this is the cell suppose if this is a cell again can you remember this cell is like this again there are two ends can you see this is a basal end this is a apical end yes or no and apical end is going to show the small hair projection hair like structure दिख रहा है ये so there is a difference in the cilia and microvilli कैसा था ऐसा था ना microvilli was like this am I correct ये देखो ये न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है cilia fine hair like structure now where are the cilia present they are present in your respiratory pathway for example देखो ये रूम है यहाँ पे बहुत सारा डस्ट हो गया तो आप क्या करोगे यू विल स्टार्ट स्नीजिंग क्यों होगा बिकॉज वो डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाना चाहिए अभी उसके टाइम क्या होता है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्नीज ये जो सिलेटेड सेल्स है ना देखो यहाँ पे है कि नहीं ये सिलिया क्या करेगा इट इज गोइंग टू मूव द डस्ट पार्टिकल इन अपवर्ड मैनर इट इज गोइंग टू स्वेप्ट द डस्ट पार्टिकल इन अपवर्ड मैनर सो दैट इट विल रिमूव ऑल द डस्ट समझ में आया कि नहीं नाउ कैन यू रिमेंबर दिस डायग्राम 10th स्टैंडर्ड में किया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रहे कि नहीं ये सर नो तो ये दिख रहा है ना ऐसे दिखता है ना कान के जैसे राइट नाउ डोंट ऑफेंड नाउ ये क्या है दिस इज कॉल्ड एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे आर कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब ओके अगर आपने देखा ये जो ओवरी है ना एग रिलीज करेगा एग किधर आएगा फेलोपियन ट्यूब ये एग क्या होगा आगे आगे बढ़ेगा ना तो ये एग को आगे पुश करने का काम कौन करेगा सिलिएटेड सेल एग को आगे पुश करने का काम कौन करेगा सिलिएटेड सेल पुश करो खुश रहो गुड नाइट का एडवर्टाइज है वो हाँ समझ रहे कि नहीं इधर भी कुछ भी पुश नहीं करने का प्रॉब्लम होता है ओके
Any doubt, any query? Yes. So this is all about what? That is which epithelium? Ciliated epithelium. Okay. Now coming to the another type. Before that, we will just have a look for the description. Cells can be cuboidal or columnar, inner end narrow, outer end broad. They are provided with a hair-like projection called as cilia. Okay, now can you see the nucleus is oval toward the basal end. Function क्या है? Movement of material, prevent the entry of foreign particle. What is foreign particle? Dust. Okay, and push the ovum in oviduct. Push करो, push करो. Very good. Location किधर है? Location is inner lining of the buccal cavity of the frog, nasal cavity, trachea, oviduct of vertebrate. Any doubt, any query? Yes. So this is all about what? Ciliated epithelium. Coming to the another type called as glandular epithelium. Glandular मतलब it is going to secrete something. कुछ तो वो रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा. ओके, तो आपके बॉडी में ना दो टाइप के ग्लैंड होते हैं. ओके, वन इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन, अनदर इज कॉल्ड एज व्हाट? एंडोक्राइन. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन एंड. देखो हमेशा याद रखो, ग्लैंडुलर मतलब कुछ तो सिक्रेट करेगा. आपको स्वेट आता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द स्वेट ग्लैंड. तो ये क्या है? एक्सोक्राइन सिक्रेशन है. बिकॉज जो एक्सोक्राइन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? कैन यू सी? दिस इज अ व्हाट यू कैन से, देयर इज अ ग्लैंड. अभी ये ग्लैंड है, ये क्या कर रहा है? इट इज गोइंग टू रिलीज द फ्लूइड. दिख रहा है? ये अंदर फ्लूइड रिलीज कर रहा है. देखो ये सेल दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आयंस एंड वाटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज स्वेट ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल, दिस स्वेट ग्लैंड इज गोइंग टू रिलीज द स्वेट एंड देन स्वेट इज कैरिड आउट बाय द डक्ट. मतलब इसके पास डक्ट है कि नहीं? कैरी करने के लिए डक्ट है, तो उसको बोलना है एक्सोक्राइन ग्लैंड. क्या बोलने का? एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ ग्लैंड विद अ डक्ट. इजी. कैन यू सी? दिस इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. इट डू नॉट हैव डक्ट. जो कुछ सिक्रेशन है वो किसके अंदर डालेगा? ब्लड के अंदर. आर यू गेटिंग? Whatever the secretions are there, that secretion are ultimately released where? Inside the blood. So and always remember, इसका secretion है ना endocrine gland का, endocrine tissue का secretion is always hormone. ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है. एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन कुछ भी हो सकता है. मिल्क हो सकता है, मैमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड से स्वेट होता है. स्वेट का पता है ना? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वेट? आपके बॉडी में स्वेट फॉर्म होता है कि नहीं होता है? फंक्शन क्या है बोलो? स्वेट है. सपोज अगर मैं धूप में चल रहा हूँ तो मुझे बहुत सारा क्या आएगा? स्वेटिंग आएगा, पसीना आएगा. वो पसीना मेरा बॉडी को कवर करेगा कि नहीं पूरा? एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द कूलिंग इफेक्ट. बॉडी हीट हो रहा है कि नहीं? उसको कूलिंग इफेक्ट चाहिए कि नहीं? जितना बाहर ज्यादा हीट उतना ज्यादा स्वेटिंग की नहीं. तो स्वेट ग्लैंड क्या है? इट इज गोइंग टू गिव द कूलिंग इफेक्ट. लेकिन उसका स्मेल भी आता है, बिकॉज दैट स्वेट कंटेन सर्टन मॉलिक्यूल लाइक यूरिया. तो वो स्वेट मास्क करने के लिए तुम लोग क्या करते हैं? डिओड्रेंट. डिओड्रेंट इज टू मास्क द स्मेल ऑफ द स्वेट. आपके बॉडी में से अच्छा स्मेल आने के लिए, या फिर जो बुरा स्मेल आ रहा है उसको मास्क करने के लिए. लड़कियां पटाने के लिए नहीं यूज होता है, याद रखो. हाँ पता है ना? ऐसे लगता है ये डीओ यूज करो, लड़कियां पीछे लगती है. किधर भी चालू होते हैं, रहता है ना एस्केलेटर, एंगेज. समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं है. ओके, तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू हुआ. हार्मोन आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, हार्मोन रिलीज करेगा. थायराइड ग्लैंड, हार्मोन. किडनी के ऊपर कुछ तो याद है? किडनी का डायग्राम यू हैव ड्रॉन. वाह क्या डायग्राम ड्रॉ किया है ना. कैन यू सी देयर इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. कुछ तो टोपी जैसे निकाला था कि नहीं किडनी के ऊपर? क्या टोपी लगाया था वो? दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज व्हिच ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड. समझ में आया कि नहीं? ऑल दीज आर गोइंग टू रिलीज हार्मोन. ये सब क्या रिलीज करेंगे? हार्मोन्स रिलीज करेंगे. इजी है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? मैं बताता हूँ हाथ क्या है. ओके, तो ये क्या? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेदर इट इज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. ओके, अभी अनदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नंबर. एक तो सिंगल सेल रहेगा या फिर बहुत सारा सेल रहेगा. अगर वो सिंगल सेल है, दिख रहा है ये सिंगल सेल, गॉबलेट सेल. व्हाट इज गॉबलेट? गॉबलेट का मतलब सिंगल होता है.
तो जिंदगी भर सिंगल रहेगा। हाँ बोलो, व्हाट इज द गॉबलेट? आप लोगों ने मूवी देखा है हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर? उसका हिंदी वर्जन है क्या? हरिपुत्र नहीं क्या? मराठी वर्जन भी है हरिकुंभार। हाँ, तो हरिपुत्र एंड आग का प्याला। व्हाट इज प्याला? मतलब क्या होता है प्याला में? क्या पीते तुम लोग? येस, पाणी शराब। अरे वाह, कधी पण आणि कुठे पण बसा संघटना ना। देखो येस, कप लाइक स्ट्रक्चर। पता है तुम लोगों ने गाना सुना रहेगा, मैं प्रेम का प्याला पी आया। हाँ, सो बेसिकली प्याला इज कप लाइक स्ट्रक्चर। कैन यू सी देयर इज समवॉट कप लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर? ऐसे होगा, आर यू गेटिंग? और उसके अंदर हाँ क्या है ये? सिक्रीशन। ओके, व्हाट सिक्रीशन इट इज? कॉल्ड एज म्यूकस। म्यूकस समझता है कि नहीं? म्यूकस, आपका सलाइवा देखो स्लाइमी होता है, ठीक है ना? खुद का सलाइवा, दूसरे का नहीं। हाँ, तो सलाइवा इज स्लाइमी, एम आई करेक्ट? तो ये स्लाइमीनेस क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ म्यूकस। आपको कभी कभी खाना खाने के बाद वोमिटिंग होता है। वोमिटिंग इज नॉट ऑलवेज गुड न्यूज। इन्फेक्शन की वजह से होता है, कुछ भी होता है, राइट? ओवर ईटिंग की वजह से होता है। नाउ वोमिट करने के बाद स्लाइमी सिक्रेशन होता है कि नहीं? दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूकस। तो ये म्यूकस कौन रिलीज करेगा? गॉबलेट से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉबलेट? हाँ, कप लाइक स्ट्रक्चर, नॉट कॉटन। हाँ, इट इज व्हाट? कप लाइक स्ट्रक्चर। इजी ना। अनदर ये दिख रहा है मल्टीसेलर। अभी देखो ये पूरा एक ग्लैंडुलर है, मतलब ये एक ग्लैंड हुआ। अभी ग्लैंड कैसे हो सकता है? सिंपल ट्यूबुलर। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, और इट कैन बी कॉइल। कैन यू सी देयर इज अ कॉइल स्ट्रक्चर? और इट कैन बी ब्रांच। ये पंजा नहीं है, व्हाट इज दिस? ब्रांच स्ट्रक्चर। समझ में आया? इजी है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? ओके, नाउ लुक एट दिस। क्यूबॉइडल हो सकते हैं और कॉलमनार, या फिर क्या पिरामिडल शेप। दिख रहा है ये पिरामिडल शेप सेल्स? आपका पैनक्रियास पता है? पैनक्रियास, पैनक्रियास के अंदर ऐसे पिरामिडल शेप सेल्स होते हैं। ओके, तो ये पैनक्रियाटिक अगर मैंने एक पार्ट लिया एसिनस ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसिनस? इज फ्लैश शेप अगेन। ओके, तो देखो न्यूक्लियस इज, okay, nucleus is large, situated toward the base. Okay, then there is secretory granule in the cytoplasm. Okay, there is a secretory granules in the cytoplasm, right? दिख रहा है यहाँ पे? Okay, here you can see the mucus. तो ये बाहर की तरफ आएंगे ना, उसकी वजह से उसको क्या बोलना है? secretory। क्या बोलना है? Can you see this? Molecules are going to release outside, so it is what? secretory, right? Now next, so it is type based on the number of cell, either it can be unicellular or multicellular. Type based on mode of secretion, either it can be endocrine or लीवर। पता है लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल। बाइल, बाइल इज अ जूस। मतलब क्या है? आपका लीवर है, ये जूस सीक्रेट करेगा, बाइल जूस, जिसकी वजह से डाइजेशन होता है। वो हम लोग करेंगे डिटेल में इन अ टॉपिक कॉल्ड एज ह्यूमन न्यूट्रिशन। ओके, बेस्ड ऑन दैट इज सिक्रेशन में क्या एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर खाया कभी तुम लोगों ने? कलेजी फ्राई, कलेजी, राइट? तो उसको लीवर बोलते हैं, राइट? देन एंडोक्राइन, उसके बाद में फंक्शन क्या है? सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम, हार्मोन, डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजी। इजी है? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट इज कॉल्ड एज सेंसरी इपिथेलियम। कैन यू एबल टू स्मेल? हाँ, अभी यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको एक मॉडिफाइड न्यूरोसिक्रेटरी सेल है, ग्रीन कलर का सेल दिख रहा है कि नहीं? ओके, ये ग्रीन कलर का सेल अगर आपने ऑब्जर्व किया, ओके, दिख रहा है क्या लिखा है यहाँ पे? देयर इज अ सेल विच इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल। दिख रहा है? कैन यू सी? इट हैज गॉट सिलिया। नाउ दिख रहा है ये स्मेल मॉलिक्यूल है। स्मेल मॉलिक्यूल इज कलेक्टेड बाय द सिलिया। ये मैसेज किसके पास जाएगा? ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर, और वो आपके दिमाग में लेके जाएगा एंड यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई द स्मेल। हाँ, क्या है? किसने किसने तो डिओड्रेंट यूज किया है। ओके, कोई तो क्या है? डव साबुन से नहा के आया है, कोई किसने डेटॉल लगाया है, किसने सैनिटाइजर यूज किया है। कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई? कि नहीं? कभी कभी क्लासरूम में होता है कि नहीं, कोई तो सैनिटाइजर लगाता है, कोई तो क्या है रोज वाटर का स्प्रे मारता है। तो यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई। ऐसे बहुत सारे स्मेल है, यू कैन आइडेंटिफाई। कि नहीं? किसने कुछ फ्राइड लेके आया टिफिन में, खोला तो स्मेल आता है कि नहीं? ओके, आजू बाजू में देखो, अगर किधर चिकन कुक हो रहा है, हाँ,
टन वाजलं मटन शिजलं. ओके, यू कॅन एबल टू आइडेंटिफाई, यस और नो. तो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम किससे बना है, सेल है, और ये दिख रहा है सपोर्टिव सेल और सपोर्टिंग सेल. मतलब दो सेल है कि नहीं, एक तो क्या है जो स्मेल रिकॉग्नाइज करेगा, दूसरा क्या है सपोर्टिव सेल है. समझ में आया कि नहीं. ओके, डू यू नो स्नेक्स, डू यू नो नाजा नाजा वर्ड. नाजा, हाँ नाजा नाजा क्या है, जल्दी आजा. ओके, इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा. कोबरा पता है, सांप. हाँ, सबको डसेगा, बाबा जी का टुल्लू नहीं. हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो ये नाजा नाजा, अगर आपने स्नेक देखा तो स्नेक का देखो टंग ये समवॉट लाइक दिस. एंड देखो क्या होता है, हमेशा इट इज गोइंग टू टेक आउट द टंग आउटसाइड, दैट टेक इट इनसाइड. क्यों करते हैं, मजा आता है क्या उसको, नहीं. तो वही बताता हूँ मैं, देखो जब भी वो टंग बाहर निकालेगा, इट इज गोइंग टू कलेक्ट द स्मेल मॉलिक्यूल इन द एटमोस्फियर और इन द एनवायरमेंट. अभी ये स्मेल मॉलिक्यूल कलेक्ट करके अंदर लेके जाएगा, और उसके जबान में एक ऑर्गन है जेकब्सन ऑर्गन, वो स्मेल मॉलिक्यूल उसको जाके चिपकाएगा और उसको बोलेगा तो आइडेंटिफाई कर क्या है वो. उसका टंग का काम क्या है, मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करना और देना, और उसका ऑर्गन रिकॉग्नाइज करेगा क्या है, कोई उधर है क्या खाने के लिए कुछ, एंड अकॉर्डिंगली इट विल गो. बिकॉज उसके पास नोज नहीं है ना, इट कैनॉट हैव द सेंसरी एपिथेलियम लाइक अस. ओके, तो ये क्या है, दैट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है. ठीक है ना. उसके बाद में क्या है, देखो क्या लिखा है, cells are modified from of the columnar cell and elongated neurosecretory cell. Can you see this is elongated neurosecretory cells, है कि नहीं, बीच बीच में क्या है कॉल्यूमनर सेल है कि नहीं. नाउ अगेन सेंसरी हेयर टुवर्ड द फ्री एंड, लिखा है कि नहीं, हेयर मतलब सिलिया लाइक स्ट्रक्चर. नाउ न्यूक्लियस इज स्पेरिकल और ओवल. फंक्शन क्या है, परसीव द एक्सटर्नल और इंटरनल. स्मेल इज एक्सटर्नल स्टिमुलस. इंटरनल क्या हो सकता है, स्नेक का जाने दो, आपके बारे में बताओ. आपको प्यास लग गई, समझते हैं, इंटरनल है ना, तो ये क्या इंटरनल स्टिमुलस. एंड देन व्हाट यू ड्रिंक, हाँ अल्कोहल नहीं, क्या वाटर. ओके, है कि नहीं, और समझ में है कि नहीं, एंड दैट इज हाउ व्हाट आप आपकी प्यास बुझाते. समझ में है कि नहीं, ये पानी वाली प्यास. ओके ना. लोकेशन वेयर इट इज फाउंड इन नोज, ईयर एंड आई. यू कैन एबल टू हियर, यू कैन एबल टू स्मेल, यू कैन एबल टू सी. ठीक है, any doubt, any query. The last one called as germinal epithelium. What is germinal epithelium? Germinal epithelium is concerned with the formation of gamete. आपको यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहा है, एक है ओवरी दिख रहा है, ये ओवरी, ओवरी में यहाँ दिख रहा है जर्माइनल एपिथेलियम लिखा है, यहाँ पे देखो ये पूरा दिख रहा है क्यूबोइडल एपिथेलियम. पे अटेंशन ऑल ऑफ यू प्लीज. कैन यू सी देयर इज अ जर्माइनल एपिथेलियम. Throughout this is germinal epithelium and it is associated with the formation of egg और ओवम. जैसे ये टीएस ऑफ टेस्टिस है, उसका अगर मैंने सेक्शन लिया, ट्रांसफर सेक्शन, टेस्टिस को लेने का, इसे कट करने का. ओके, यू कैन एबल टू सी द स्ट्रक्चर लाइक दिस. इट इज ऑलरेडी बीन स्टडीड, आपको कुछ करना नहीं है, याद रखो, है ना. दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो है ना, दिख रहा है जर्माइनल एपिथेलियम, एंड जर्माइनल एपिथेलियम क्या रिलीज करेगा, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमेट्स. ओके, कैन यू सी दिस इज अ क्लस्टर ऑफ स्पर्म, so that is present in your testis. So testis का काम क्या है, production of the sperm. Okay, so germinal epithelium is either it can be squamous or cuboidal, nucleus is spherical, function gamete formation by meiosis, and where it is present, lining of the seminiferous and lining of ovary. समझ में आया कि नहीं, yes or no. This is here we have completed the all simple epithelium. Now we are going to talk about compound epithelium. In the compound epithelium, you can see there are many layers are there. Name suggests that compound is multi-layer, multi-stratus. मतलब क्या, बहुत सारे layers है. अभी ये compound epithelium का एक characteristic क्या है, आपको दिख रहा है बहुत सारा layer है,
लेकिन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर लेयर ऑफ द एपिथेलियम। सब जगह पे बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या? नहीं, it is present only on basal lamella. Okay, you can see this is called as basal lamella or basement membrane, it is one and the same. Okay, so in case of the stratified epithelium or compound epithelium, all there are different layers are there, but basement membrane is seen only in case of the lowermost layer. जो लोअर मोस्ट लेयर है उसके पास ही क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है वो आपके स्किन का है। आपका स्किन एपिडर्मिस बोलते हैं उसको, उसके नीचे क्या? डर्मिस। एपिडर्मिस का ये ऊपर वाला लेयर दिख रहा है, स्ट्रैटम कॉर्नियम। यहाँ के सेल्स है, these cells are going to lose the nucleus, they become dead. तो आपका डेड स्किन होता है ना ऊपर। ओके, बिलो दैट स्किन यू कैन सी देयर इज अ स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटा मतलब लेयर, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। ओके, now you can see this stratified epithelium. Cells can be either squamous or cuboidal, but they are arranged one after the other. That's why it is called as what? Stratified. Now here, there you can see 2 to 3 layer of cell. Nucleus का location देखो, pay attention. Cells at the free end, this become a free end, am I correct? Free end मतलब जो expose है बाहर की तरफ. Okay, that become what? Become a flat and lack the nucleus. Now you can see it is without nucleus. Okay, if you observe this, okay, this is called as, this layer is without nucleus. This layer, can you see this layer? It is without nucleus, so they become without nucleus. Don't write. Okay, now that is called as what? Stratum corneum. Okay, after that the next is the nucleus present in the stratum germinativum. Can you see this? That means at free end nucleus is absent, but at other end nucleus is present. Okay, now what is the function? Function is protection. Where it is located? In the epidermis of the skin. Your esophagus. esophagus समझता है. Suppose there is a pharynx. पहले oral cavity. Food किधर जाएगा? Pharynx. Pharynx से किधर जाएगा? Esophagus. Esophagus is going to enter into the stomach. Okay. Then there is cornea. Cornea are present. That is a layer on your eyes. It is a transparent layer. Okay. So for example, if you see the eyes, all the whitish part, it is covered by the cornea. Okay. Then there is vagina. It is a part of female reproductive tract. It also has a stratified epithelium, and rectum. Rectum is a part of your the digestive system. Last part is large intestine. Large intestine का दो part है, colon and rectum. Rectum is the last part. Rectum open outside by means of anus. Okay, ये था stratified epithelium. उसके बाद में the last one is called as transitional epithelium. Okay, what is the last one? It is called as transitional epithelium. In case of the transitional epithelium, दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखो यहाँ पे टिश्यू इज नॉट स्ट्रेच, एंड यहाँ पे क्या है? टिश्यू इज स्ट्रेच। मतलब अगर टिश्यू के ऊपर प्रेशर आएगा तो क्या हो जाएगा? इट गेट कंप्रेस। एम आई करेक्ट? अगर टिश्यू के ऊपर प्रेशर नहीं है, इट विल कम बैक टू द नॉर्मल शेप। मतलब इट हैज कैपेसिटी टू अंडरगो स्ट्रेचिंग। एम आई करेक्ट? मतलब वो स्ट्रेच हो सकता है, वो क्या हो सकता है? एक्सटेंड हो सकता है, या फिर थोड़ा क्या हो सकता है? सपोज अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है? स्टोर द यूरिन। अगर उसके अंदर यूरिन भरेगा, लेकिन क्या है? सपोज अभी यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड अप विद द यूरिन, और आपको यूरिनेशन के लिए जाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो यूरिन भरता जाएगा, आपको समझेगा नाउ यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, यू हैव टू गो फॉर द यूरिनेशन। लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशन आपको नहीं मिला जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस नहीं रुकने वाला, ऐसे होता है कभी कभी कंडीशन जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, तो वो फुल यूरिनरी ब्लैडर, वो ज्यादा यूरिन भी इट कैन एकोमोडेट, इट कैन कैरी द मोर यूरिन। कैसे? बिकॉज ये टिश्यू क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दैट दे हैव द स्ट्रेच रिसेप्टर, उससे पता चलेगा दैट योर यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, नाउ यू शुड एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आ रहा है कि नहीं? So that is called as transitional epithelium. It can actually undergo the stretch, or it can compress, it can increase the size of the urinary bladder. So it is present where? In the urinary bladder. Easy है? Yes? Now
Transitional epithelium is structure like a stratified epithelium. Cells can undergo change in their shape and structure depending on degree of the stretch. मतलब बेस ऑफ द स्ट्रेच उनका शेप क्या होगा, चेंज होगा. अगर स्ट्रेच है तो वो कंप्रेस होंगे, या फिर यू कैन सी दिस इज अ टिश्यू विच इज स्ट्रेच नॉट स्ट्रेच एंड दिस इज विच इज, तो ये कंप्रेस हुआ कि नहीं, अदरवाइज दे आर इन नॉर्मल शेप. समझ में आया कि नहीं. तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड ओनली इन यूरिनरी ब्लैडर. ओके. फंक्शन डिस्टेंशन ऑफ द ऑर्गन, मतलब साइज बढ़ाएगा ऑर्गन का. लोकेशन इज यूरिनरी ब्लैडर. हियर वी हैव कंप्लीटेड द एपिथेलियल टिश्यू. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल जंक्शंस. जंक्शन मतलब हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या किया था एपिथेलियल टिश्यू में, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, दे आर प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर. अगर बाजू बाजू में अरेंज करना है तो उसके बीच में कुछ तो सीमेंटिंग मटेरियल चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ईंट रखा उसके ऊपर दूसरा ईंट रखा तो दोनों के अंदर सीमेंट भरते कि नहीं, नहीं तो वो क्या हुआ, दीवार गिर जाएगा. एम आई करेक्ट. तो अगर दो सेल को बाजू बाजू में चिपक के रहना है तो कुछ तो चाहिए कि नहीं. लेकिन इट इज एप्लीकेबल, दैट मीन्स देयर हैज टू बी सर्टन थिंग विच कैन अटैच देमसेल्फ. नहीं, दो इंसान में भी देखो एक साथ रहना तो कुछ तो अटैचमेंट चाहिए कि नहीं, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए कि नहीं. अगर वो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप, अनदर अटैचमेंट, है ना. यस. टेंशन. ओके. नाउ मस्ट बी थिंकिंग ऑफ समवन. हाँ देखो, नाउ देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शन. यहाँ डायग्राम में बहुत सारे हैं. अगर आपका टेक्स्ट बुक देखा तो टेक्स्ट बुक में एकदम डेंजर डायग्राम है. ओके. यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर. तो ये दिस इज कंपैरेटिवली इजी. नाउ यू कैन सी टू सेल्स. जो पहला जंक्शन है क्या लिखा है, टाइट जंक्शन. टाइट मतलब क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, फेविकॉल का जोड़, कि नहीं, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना. ओके. तो यू कैन सी दीज आर द टाइट जंक्शन. क्या करेगा, इन केस ऑफ द टाइट जंक्शन इट इज गोइंग टू मेंटेन द पोलैरिटी. मतलब क्या, सेल को एकदम अपराइट रखेगा. ये पहला फंक्शन. यहाँ पे ना ये दोनों के बीच में देखो कुछ मॉलिक्यूल्स है ना, दीज मॉलिक्यूल्स कैन लीक. यहाँ पे लीकेज हुआ तो चलेगा बिकॉज दोनों के बीच में लीकेज है, वो बाहर नहीं जाना चाहिए. इट शुड नॉट कम आउट. so that is prevented the lateral diffusion of molecule. कौन सा जंक्शन, टाइट जंक्शन. विच जंक्शन, टाइट जंक्शन. समझ में आया कि नहीं. so can you see there is a first junction, maintain the polarity, prevent the lateral diffusion of the protein and ions. easy. second junction is called as adhesion. adhesion मतलब क्या, अटैचमेंट. ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. मतलब क्या, हाँ मेरे सेल में ये चेंजेस हुआ है सो इट विल सेंड अनदर मैसेज टू द नेबरिंग सेल. तो क्या लिखा है, वेरियस सिग्नलिंग पाथवे एंड ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, उसको भी रेगुलेट करेंगे. ये सेकंड पॉइंट. द थर्ड यू कैन सी दिस इज द थर्ड पार्ट कॉल्ड एज डेस्मोसोम्स. डेस्मोसोम क्या करेंगे, इट इज गोइंग टू मेंटेन द अटैचमेंट. दिखा है यहाँ पे, प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ सो दैट दे विल रिमेन टुगेदर. मतलब क्या है, दोनों को बाइंड करके रखेगा. दैट इज अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ. राइट. कैन यू सी दिस. okay, maintain, it is going to provide mechanical strength to maintain tissue of cardiac cell. cardiac cell पता है आपका हार्ट क्या करता है, what is the function of the heart, pumping action. मतलब क्या पंप करता है, ब्लड, बराबर कि नहीं. तो दिल धड़कता है कि नहीं, किसके लिए, खुद के लिए, बराबर, खुद के लिए. वही तो मैं बोला, ये सब नो. ओके. तो हाँ, जीने के लिए. कौन जीना. ओके. नाउ ये the you know the heart, do you have heart, yes, or you have given to someone, you are dying for other heart. okay, now ठीक है, आ जाओ. तौबा तौबा, क्या बात कर. now these desmosomes, okay, they are going to provide mechanical strength to the epithelial tissue. they are going to provide mechanical strength to another part called as मेनिंजेस. लिखा है, कार्डियक मसल एंड मेनिंजेस. आपका ब्रेन है, इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड एज मेनिंजेस. उसको भी पकड़ के रखने का काम कौन करेगा, ये डेस्मोसोम. उसके बाद में ये गैप जंक्शन है. गैप जंक्शन का एक्चुअल में इफ यू ऑब्जर्व द गैप जंक्शन, दे हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस. so this is one cylindrical structure, okay, and this is another cylindrical structure. can you see these two cylindrical structure are in contact with each other.
मतलब क्या होगा, मसाला इधर का उधर, आर यू गेटिंग? अगर कुछ माल इसको उधर भेजने का है या उधर से कुछ माल इधर लेके आने का है, तो ये क्या है, गैप जंक्शन. तो दे आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच विल अलाउ, ये हॉलो है कि नहीं, ये क्या है, हॉलो है, हॉलो है, बराबर कि नहीं. तो क्या हो जाएगा, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा. आर यू गेटिंग? नो वाइल्ड इमेजिनेशन. ओके, सो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन. व्हाट इज अ गैप जंक्शन? Functions of the gap junction is allow the passage of ions and small molecules between the cells as well as exchange of chemical message between the cell. Are you getting? मतलब दो सेल के बीच में आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल या फिर कुछ केमिकल है उसको एक्सचेंज करने का काम करेगा. ओके, अभी ये तो हो गया, बाजू बाजू में चिपके हुए हैं, नीचे भी चिपके होना चाहिए ना, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, याद आ रहा है, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो नीचे भी चिपकना होना चाहिए. कैसे चिपकेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इंटीग्रीन, हेमिडेस्मोसोम्स एंड फोकल अडेजन. तो यहाँ पे जो मेंशन किया है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हेमिडेस्मोसोम्स. अलाउ द सेल स्ट्रांगली अधीर, अधीर मतलब अटैच, वेयर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड मेंटेन द टिश्यू होम्योस्टेसिस बाय सिग्नलिंग. होम्योस्टेसिस मतलब क्या, इंटरनल एनवायरमेंट कांस्टेंट. व्हाट इज होम्योस्टेसिस? अंदर का एनवायरमेंट कांस्टेंट रखना, उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस. इजी? यस, एनी डाउट, एनी क्वेरी? ओके, ओके, so this is all about what, epithelial tissue का cell junction. So here we completed entire epithelial tissue with cell junction.